Hello everyone. Some law and processes are given in column 1. Match this with the physical phenomena in column 2. So starting with the A option, the transition between two energy levels. So first transition we know already in case of the different energy level in a atom, right? In this different energy atom, you can also say hydrogen spectrum, right? Their transition will take place between one energy level to other, right? It could be any, like the transition could take place like this, like this, like this, like this. So the transition could be absorption as well as emission. For example, whenever it will absorb energy, it will jump to higher energy state. For example, these two are the absorption spectrum, absorption, and they are coming to the lower energy state. So these are the emission energy spectrums. They will emit energy, right? So they will emit and they will absorb. So the transition between two atomic energy, it's happen in the hydrogen, as well as it also happens in characteristic X-ray. We know this, right? In characteristic X-ray, the X-ray, K alpha, K beta, right? They all are decided by the transition between K, L, M and shell, right? Now moving toward the electron emission from a material. So if you see here, if I talk about the electron emission, so first of all we know that when you incident some light on a metal with some definite energy, let's say the frequency is of the light is f, right? Then here the photoelectron will get emitted, and you write down the maximum kinetic energy is equals to energy of the photon that is being emitted minus work function. This is the work function, right? So this here the photoelectron get emitted. These are the photoelectron. We call them as photoelectron. They get ejected after getting a sufficient amount of energy, that is called as the work function. So if you see here, one phenomena is this photoelectric effect. Now the next phenomena, beta decay. In beta decay, if you see, we know that one neutron get converted into one proton plus electron. So that the electron and the proton have nearly equal mass, right? And but the proton have a plus E charge and electron have a minus E charge, right? So in nucleus this happens in beta decay. Neutron gets converted into proton plus electron. So see here the electron emission took place. So we will write down this Q and S. So let me write down this P and R, and this is Q and S. Moseley law. So if I talk about the Moseley law, we know that the most famous Moseley law, that under root of frequency is equals to A Z minus B, right? And this is for the X-ray. Moseley law we study in the characteristic of X-ray. So this is matched with P. Now the charge of the photon energy into the kinetic energy of the electron. So you can see this kinetic energy. So yes, what it will match here? So it is photoelectric effect, Q. So I will write down here PR, QS, PQ. These will be the matches. Thank you. इस क्वेश्चन में बोल रखा है टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक स्टूडेंट ने क्या करा, ग्राफ प्लॉट करा। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करा? लॉग dN/dt वर्सेस t के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, जहाँ मॉड ऑफ लॉग जो dN/dt है वो क्या बता रहा है? रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके एट टाइम t। यदि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इस एलिमेंट का p फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है आफ्टर 4.16 ईयर,
तो p की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले n इज इक्वल टू हमारा dn/dt इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो प्रोपोर्शनल होता है n के, चूंकि n कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है, क्योंकि डीके हो रहा है तो n कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है, तो इसलिए यहाँ एक क्या होता है, निगेटिव साइन लग जाता है। अब जब निगेटिव साइन लगता है तो फिर हम क्या करते हैं, dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n, उसके बाद इंटीग्रेट करके हम n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाती है, n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t। तो अब यहाँ पे वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस लेमडा n की वैल्यू क्या लिख सब्स्टिट्यूट करेंगे, n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t, ये हो जाएगा dn dt। इट मीन्स dn dt क्या हो जाएगा हमारे पास, dn dt हो जाएगा माइनस लेमडा n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि log बोथ साइड ले लें, क्योंकि ये log dn/dt का ग्राफ बना हुआ है, तो हम बोलेंगे टेकिंग log बोथ साइड, तो दोनों साइड log ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, log mod dn/dt इज इक्वल टू, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, log ऑफ माइनस लेमडा n0, ये आ जाएगा इन प्लस यहाँ से माइनस आ जाएगा लेमडा इंटू टी। तो इट मीन्स दैट यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा log dn/dt है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है लेमडा के, वो t के प्रोपोर्शनल है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो यदि y इज इक्वल टू mx के ग्राफ से कंपेयर करें तो ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो लेमडा क्या देगा, लेमडा हमारा क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, लेमडा। और लेमडा स्लोप हम कैसे निकाल लेंगे, इस ग्राफ का यदि हमें स्लोप निकालना है तो किसी भी दो पॉइंट को हम लेके चेक कर सकते हैं। से लेट अस सपोज इसको और इसको लेके हम चेक करेंगे, ठीक, ये हमारे दो पॉइंट हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 करके चेक कर लेंगे। तो अभी देखो y2 क्या है, y एक्सिस में ये टोटल इसका डिस्टेंस कितना है, 4 माइनस 3, और x में टोटल कितना है, 6 माइनस 4, मीन्स ये वैल्यू हो गई 1/2। ऑफ कोर्स 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 4 2, तो 1/2 लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो यहाँ से अब जब लेमडा एक बार निकल गया तो हम हाफ लाइफ भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/लेमडा, वो यहाँ से ये 1/लेमडा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ईयर आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 ईयर। यहाँ ये log 2 होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.693/लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2, 0.693 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग 1.48 के करीब आएगी। तो 1.48 ईयर आ गया हमारे पास हाफ लाइफ। अब इसमें क्या बोल रखा है, अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीजेज बाई अ पी फैक्टर आफ्टर 4.16 ईयर। इट मीन्स जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है n इज n0 हाफ टू द पावर n, किस फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है, p फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से n0 क्या हो जाएगा, अरे n0 तो n0 रहेगा, और ये n कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, n कैलकुलेट करेंगे यहाँ से t/t हाफ कर लेंगे। तो इट मीन्स ये कितने फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, ये जो हो रहा है वो p फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। तो अभी यहाँ से ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये n0 हाफ कितने साल बाद बोल रहा है, 4.16 ईयर बाद। ये जो यहाँ से वैल्यू आएगी 4.16
डिवाइडेड बाई टी हाफ जस्ट हमने क्या कैलकुलेट करा था 1.48। ठीक, तो किस फैक्टर से ये चीज डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ये इनिशियल ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किस फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है। तो p की वैल्यू यहाँ से जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे ये n बाई एन नॉट आएगा, तो इसकी वैल्यू p की वैल्यू यहाँ से आती है n 8 आती है। तो ये जो हमारा फैक्टर आएगा किस फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। p हम फैक्टर लिख रहे हैं वो किस फैक्टर से डिक्रीज करेगा, देखो इनिशियल n बाई एन नॉट ये बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है हाफ टू द पावर 4.16 टू दी 1.48। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 टू द पावर 3 करेंगे तो 1/8 आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल होगा। अभी चेक कर लो, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 3 1 हाफ टू द पावर 3 होगा। तो ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। तो p फैक्टर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ से। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू p की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी यहाँ पे। Hello students, our question is atoms having the same dash but different dash are called isotopes. So solution for this will be, if we talk about isotopes, the atoms having same atomic number same but different mass number. These are called isotopes. Okay. In isotopes, atomic number is same and mass number is different. So we denote atomic number by Z and mass number by A. So atoms having the same atomic number but different mass number are called isotopes. So if we talk about example, so if we take example of hydrogen, deuterium and tritium, so they all have 1 as atomic number but masses are different 2, 3 and 4. Okay, thank you.